Hello, welcome students. Today I am going to create a table in design view. Please watch it carefully. Now to create a table in design view, first of all we have to go to MSSS and then click on create tab. It will show a list of options and from these list of options click on table button. When we click on table button, it will take a few seconds for creating the desired table. Now the name of the table is table 1 and there is a single column ID. Now if we want to create the table in design view, there are two ways. Either we right click on it and then select the design view option, or we can go to this viewed option and then select design view. When we click on design view, save as will open and it will prompt us for a table name. Now I am writing the table name student and then press OK button. Now the table is saved and the name is now student. Whenever we work in design view, there are three columns which appear: field name, data type and description. In field name we type the name of the column, in data type we select the appropriate data type, and in description we add some description. Here this is the tables area, and here we are having field property. In field property we have some field properties that are related with the column. So here first of all I am writing ADMNO, admission number, and select the appropriate data type number. And here admission number of student. Now press the tab key. Now here I am writing name. Now press the tab key. Now press the tab key and select the data type text, and then name of the student. Then after class, again I am taking text, class of student. Then after section, text section of student. Then after date of birth, in short we can write DOB, and date and time. The data type would be date and time, date of birth of student, and fee, currency and fee of student. After writing these column names and it's selecting its data type, now we are ready to save it. For saving it, click on the student name which is given here, the table name, and select the save option. Now the table is saved. Alternatively, you can also press this button in quick access toolbar, or you can press Ctrl S. All are used to save the table. Now once the table is saved, then you can select its properties.
So this is how you can design a table in design view. Now moving forward, these things I have already shown. These are the shortcuts: Control N for creating new database, Control O, Alt F4, Control P, Control S and F12. Now next topic is setting a primary key. So in previous video I have explained the concept of primary key. Primary key is a column or group of column that uniquely identifies every record of the table. So a primary key is a key that differentiates records in a file. The data stored in a key field contains data that is unique to a specific record. मतलब ये उन चीज़ों को डिफाइन करता है, उन वैल्यूज़ को डिफाइन करता है जो हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर एक रो के लिए यूनिक होती है. A student record, for example, would use roll number as a key field because it uniquely identifies each student. तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, रोल नंबर को प्राइमरी की लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर लिया है प्राइमरी की, क्योंकि हम एक ग्लोबल टेबल बना रहे हैं जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट ऐसे हों जिनका नाम सेम हो और वो दो डिफरेंट सेक्शंस या दो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे हों. तो ऐसा भी हो सकता था कि उनका रोल नंबर भी सेम हो. जैसे क्लास 8A में अमित नाम का एक बच्चा है और क्लास 8B में भी अमित नाम का एक बच्चा है और दोनों का रोल नंबर मान लीजिए 2 है. तो ऐसा हो सकता था. तो उससे बचने के लिए हमने एडमिशन नंबर को यहाँ पे लिया है एज अ प्राइमरी की. इन ईच न्यू टेबल दैट यू क्रिएट you want to set one field as primary key. SS uses this key to relate the table records to those in another table. कैसे करते हैं ये? चूज द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की एंड क्लिक ऑन प्राइमरी की बटन. अब देखिएगा यहाँ पे हम आते हैं MSSS में. ये जो कॉलम है इसको हमने प्राइमरी की सेलेक्ट किया है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये प्राइमरी की बटन है, इस पर अगर प्रेस करेंगे तो पहले ये प्राइमरी की था, अब ये हट गया. कैसे पता चल रहा है कि ये प्राइमरी की था? अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये कॉलम प्राइमरी की है तो प्राइमरी की बनाने के लिए भी देखो यही ऑप्शन यूज़ करेंगे, प्राइमरी की बटन, और हटाने के लिए भी यही ऑप्शन यूज़ करेंगे. जैसे अभी देखिए ये अनहाइलाइटेड है, इसको सेलेक्ट किया और प्राइमरी की बटन हमने प्रेस किया, तो अब देखिएगा यहाँ एडमिशन नंबर से पहले एक की बन के आ रही है. दिस शोज दैट दिस कॉलम इज़ प्राइमरी की. और अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर प्राइमरी की बटन प्रेस कर देंगे, वो हट जाएगा. तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिससे आप प्राइमरी की सेट भी कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो. तो हमने इसको प्राइमरी की सेट कर दिया. वही चीज़ यहाँ पे आपके बुक में भी दी गई है कि द फील्ड विल सेट एज अ प्राइमरी की इंडिकेटिंग अ स्मॉल की सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ द फील्ड. द प्राइमरी की इज ऑन ऑफ टॉगल. टू रिमूव इट सेलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन अगेन. नाउ moving forward, next topic is understanding the field properties. जो field property है वो क्या होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखिए ये जो एरिया है आपका, इसको बोलते हैं field property pan. इस field property pan में अगर हम देखें तो कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे field size है, format है, डेसिमल प्लेसेस है, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैग्स, रिक्वायर्ड इंडेक्स, स्मार्ट टैग, टेक्स्ट लाइन. दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस जिनके बारे में हम आगे देखेंगे भी. तो देखिए पहली चीज़ आती है प्रॉपर्टी पैन. व्हेन अ फील्ड इज सेलेक्टेड इन द डिज़ाइन व्यू इट्स प्रॉपर्टी अपीयर इन द लोअर पेन. कभी कभी आप ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है. तो ये तभी दिखेगा जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करेंगे. जैसे हमने एडमिशन नंबर को सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो रही हैं. नाउ दूसरी चीज़ है जनरल टैब. द जनरल टैब कंटेन्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यू विल वर्क विथ. एंड लुकअप टैब, द लुकअप टैब इज़ प्राइमरली यूज फॉर सेटिंग अप लुकअप लिस्ट. तो देखिए दो टैब होते हैं, एक जनरल टैब है, एक लुकअप टैब है. लुकअप टैब में डिस्प्ले कंट्रोल्स आते हैं कि किस तरीके से ये दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगा,
या लिस्ट बॉक्स में दिखेगा या कम्बो बॉक्स में दिखेगा। ये चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं आपके लुकअप से। और जनरल टैब में ये नॉर्मल ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं। ये जनरल टैब है, ये लुकअप टैब है। नाउ लुकअप टैब के बाद है ड्रॉप डाउन लिस्ट। सम प्रॉपर्टी हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट विच फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट क्लिक द एरो टू ओपन द लिस्ट। जैसे अगर आप इसको देखना चाहें तो जैसे फील्ड साइज है हमारा, तो फील्ड साइज में आप देखिए लॉन्ग इंटीजर आ रहा है। अब इस कोने में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डाउन एरो हेड आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे बाइट है, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रिप्लिकेशन आईडी, डेसिमल। तो बाइट बहुत ही छोटे नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर इंटीजर, फिर उससे बड़ा लॉन्ग इंटीजर, फिर सिंगल, डबल और रिप्लिकेशन आईडी और डेसिमल, ये सब यूज़ करते हैं अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्टोर करना हो। जैसे 15.96 है तो उसके लिए हम डेसिमल ले लेंगे या डबल ले लेंगे एंड सो ऑन। तो हम इसको अगर इंटीज़र चेंज करना चाहते हैं तो हम इंटीज़र पे क्लिक करेंगे, ये इंटीज़र हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो है, इस पे भी यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ही हमारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है। नाउ अगली चीज़ है हमारी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। तो व्हेन द इंसर्शन पॉइंट इज इन प्रॉपर्टी बॉक्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी अपीयर्स हियर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस वाले पेन को देखें, हम अगर फील्ड साइज पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे दे रहा है द साइज एंड द टाइप ऑफ नंबर्स टू इंटर इन द फील्ड, द मोस्ट कॉमन सेटिंग आर डबल एंड लॉन्ग इंटीजर। अगर हम फॉर्मेट पे क्लिक करें तो उसका फॉर्मेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डेसिमल प्लेस पे क्लिक करें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। फिर है यस नो प्रॉपर्टी। तो सम प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट यस नो क्वेश्चन विच हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड फॉर यू विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारा कॉलम है, मतलब फील्ड है, प्रॉपर्टी है, इसमें वैल्यू आती है या तो यस या होती है नो। यस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड होगा और नो करेंगे तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये डिफाइन करती है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू डालना क्या ज़रूरी है या नहीं, क्या इसे हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें डिफाइन करते हैं हम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के द्वारा। एंड द वैल्यू दैट वी कैन पुट देयर इज़ ईदर यस और नो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग द फील्ड साइज। हम कैसे फील्ड की साइज को चेंज कर सकते हैं उसके बारे में अब यहाँ पे। नाउ ईच फील्ड हैज़ अ साइज दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फील्ड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फील्ड। जैसे अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो 255 कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हम नंबर की बात करें तो लॉन्ग इंटीजर, ऑटो नंबर की बात करें तो लॉन्ग इंटीजर। तो हम किस तरीके से फील्ड की साइज़ प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम एक्सेस में जाते हैं और मान लीजिए हमने नेम सेलेक्ट किया तो इसकी फील्ड साइज़ आ रही है 255 कैरेक्टर्स की। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे केवल 100 कैरेक्टर्स अलाउड हो तो हम यहाँ पे 100 टाइप कर देंगे, इसकी फील्ड साइज़ 100 हो जाएगी। अगर हमारा नंबर है तो नंबर के केस में जो फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी है वो इंटीज़र होगी या लॉन्ग इंटीज़र होगी, मतलब बड़ा नंबर स्टोर कर पाएंगे, या डबल होगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ से जाके इसकी फील्ड साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हम डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी में जाके फील्ड साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन करेंसी में और डेट एंड टाइम में आप फील्ड साइज़ प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते, मतलब फील्ड की साइज़ डिफाइंड होती है, यू कैन नॉट चेंज इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टी। तो देखिए द डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज फॉर द फील्ड विद अ डेटा टाइप ऑफ टेक्स्ट इज 255 कैरेक्टर्स, जो अभी आपने देखा था। यू कैन चेंज दिस साइज इन द रेंज ऑफ 0 to 255 कैरेक्टर, जैसा कि अभी हमने 100 किया है चेंज करके। क्लिक ऑन द फील्ड हुज साइज यू वांट टू चेंज
and click on the general tab in the field properties area and enter the new field size in the field size text box। तो हमने क्या किया है यहाँ पे एसएस में कि हमें नेम का मान लो फील्ड साइज प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो देखिए ये 100 हमारा यहाँ पे दिख रहा है। हम 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे दिया 169। तो नाउ maximum of 169 characters are allowed in the name field। So this is how we can change the field size property। Now save it। Now move to the next topic। For the number data type, click on the field whose size you want to change and click on the general tab in the field property area। Click in the field size row, a drop down menu appears on the row। Click on the drop down menu arrow to choose the field size that you want from number, single, double, etc। For example admission number हमने लिया है, long integer यहाँ आ रहा है। इस डाउन एरो हेड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें से बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, इनमें से जो भी हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो हमने डबल सेलेक्ट कर लिया तो ये डबल हो जाएगा, और अगर हमने इंटीजर सेलेक्ट कर लिया तो उसकी फील्ड साइज इंटीजर हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द फील्ड साइज इफ़ वी आर हैविंग नंबर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पहले यूज़ क्या होता है। तो देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के विद रिस्पेक्ट अगर हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो ये वैल्यू वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो यू कैन स्पीड अप योर डेटा एंट्री फॉर द फील्ड दैट यूजुअली कंटेन द सेम वैल्यू बाय मेकिंग दैट वैल्यू द डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 90% ऑफ स्टूडेंट टेक Kathak as dance, you can make Kathak the default value in the dance field। तो जैसे मान लो टेबल है उसमें एक फील्ड है डांस, आपको ये लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट कथक को एज अ डांस फॉर्म ले रहे हैं तो आप डांस में कथक को एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। क्लिक ऑन द फील्ड हुज डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू वांट टू सेट। क्लिक ऑन द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टी एरिया। क्लिक ऑन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। Type the default value। SS automatically adds quotation marks around what you typed if the data type is text, and when you display the table data sheet the default value appears in the record। अब इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ये जो क्लास है मैं मान रहा हूँ कि ये जो टेबल है मैं क्लास 8A के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास में जाऊँगा, इसके फील्ड प्रॉपर्टी में आऊँगा। अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉलम में आके यहाँ पे हमने दे दिया कि 8 VII रोमन में 8। अब हम इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोटेशन मार्क लग जाएगा इससे पहले, और फिर उसके बाद हम सेक्शन में आए और सेक्शन में मान लो हमें सेक्शन A चाहिए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉलम में आके हमने A टाइप कर दिया, फिर एंटर की प्रेस किया। देखिए यहाँ पे कोटेशंस लग जाएंगे। कोटेशन मतलब डबल कोट लग जाता है ए से पहले और उसके बाद। अब अगर हम इसको सेव कर लें और इसको डेटा शीट व्यू में ओपन करें, डेटा शीट व्यू में ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ, या तो व्यू में जाके हम डेटा शीट व्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लास में आ गया 8, सेक्शन में आ गया 8। अब जैसे मान लो हमने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया 1096, नेम हमने डाल दिया मोहन। अगर हम यहाँ पे 8 के जगह पे कोई और क्लास चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके हम क्लास चेंज कर देंगे, और यहाँ पे सेक्शन भी अगर चेंज करना है सेक्शन भी चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो हमने दे दिया 15/5/2005। फ़ी हमने दे दिया 14,500। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है तो 2059 रोहन, अब इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 12/8/2008 एंड 13,900 इस तरीके से हमने कर दिया। तो इस केस में आप देखेंगे कि हमें क्लास और सेक्शन में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, मतलब यहाँ पे हमें टाइप नहीं करना पड़ा।
तो जो कॉलम में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं वो वैल्यू वहाँ पे उठ के अपने आप आ जाती है। अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको हटा के नई वैल्यू टाइप कर देंगे, और अगर हम नहीं चाहते हैं, वही वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम वैसे ही प्रोसीड कर जाएंगे और हमें उस कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे हमारी जो टाइपिंग या डेटा एंट्री का प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फील्ड्स फॉर्मेट। तो यू कैन चेंज द फील्ड्स फॉर्मेट to update the appearance in datasheet forms and report. Click on the field whose format you want to change. Click on the general tab. Click on the format row. A drop down menu appears. Click on the drop down menu arrow to choose the format that you want. For a number or auto number field, the choice represent different number types such as general, currency and percentage. For date and time data type, the choice appear date, time format. And for yes no field, the choice appear as ways of expressing yes or no. Certain field types such as text, memo and hyperlink have no preset format. इनका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे हम फील्ड फॉर्मेट चेंज करने के लिए फिर हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में हम चले आए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम नंबर टाइप का कॉलम ले रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में आएगा जनरल नंबर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिर करेंसी हम करेंसी के लिए लेंगे यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंट, साइंटिफिक। तो हमें नॉर्मल केसेस में जनरल ही रखना है, और अगर हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम साइंटिफिक रखेंगे। अगर हम मॉनेटरी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हम करेंसी रखेंगे। अगर हम कोई यूरो में वैल्यू स्टोर करनी है तो यूरो लेंगे एंड सो ऑन। Okay, now if we select the name column, it is a text type column. अब यहाँ अगर हम फॉर्मेट में जाएं तो फॉर्मेट में आप देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, मतलब टेक्स्ट में हम कोई फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम डेट ऑफ बर्थ में जाएं, ये डेट एंड टाइप का है। अब इसके फॉर्मेट में अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल डेट फॉर्मेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट, मीडियम डेट फॉर्मेट, शॉर्ट डेट फॉर्मेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में MS एक्सेल में भी देखा हुआ था। जैसे मान लीजिए लॉन्ग डेट फॉर्मेट अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे आप अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो अब इस तरीके से हो गई 15 मई 2005, 12 अगस्त 2008। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। फिर हमने डिज़ाइन व्यू में गए। अगर हम मान लीजिए हमारे पास करेंसी टाइप का कॉलम है, उसमें भी हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में आप देखिए करेंसी है, यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंट, ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ कॉलम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ वैलिडेशन रूल। अब देखिए वैलिडेशन रूल क्या होता है। हम एक रूल डिफाइन कर सकते हैं जिसको डेटा एंट्री के दौरान फॉलो कराया जाएगा। ये एक लॉजिकल टेस्ट होता है वैलिडिटी चेक करने के लिए कि द वैल्यू दैट वी एंटर इज अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन रूल, देन ओनली द वैल्यू इज एडेड टू द टेबल। So a validation rule is used to force a field entry to meet a logical test of its validity. मतलब यहाँ पे हम फोर्स करते हैं अपने डेटाबेस में कि जो भी हम एंट्री करने जा रहे हैं वो वैलिडिटी को चेक करके होगा। By validation rule, you can ensure that the correct value is entered in the field. If the user makes an incorrect entry, error alerts can stop the user, provide a warning or just provide information. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, click on the field where you want to create the validation rule, click on the general tab in the field property area, click on the validation rule row and type the validation rule in that row, click on the validation text row and type the text for the error message. तो देखिए यहाँ पे हम वैलिडेशन रूल लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम फी कॉलम में वैलिडेशन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और यहाँ पे है वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल में हमने दे दिया कि लेस देन
18,000। मतलब हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट का फीस हो वो 18,000 से कम होना चाहिए, तो ये रूल हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये जो वैल्यू होगी वो 18,000 से कम होनी चाहिए। और वैलिडेशन टेक्स्ट में हमने दे दिया कि द फी मस्ट बी लेस दैन 18,000। नाउ अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। और हम अब स्टूडेंट टेबल में चलते हैं और यहाँ पे हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और इसका नाम हमने रख दिया सोहन। सेम क्लास सेक्शन है, हमने दे दिया 12 मई 2009 और यहाँ पे हम वैल्यू इंटर करें 25,000। देखिए यहाँ पे जो हमने 25,000 डाल के टैब की प्रेस किया, ये माइक्रोसॉफ्ट एसएस एक डायलॉग बॉक्स में एरर मैसेज दे रहा है, द फी मस्ट बी लेस देन 18,000। हम 25,000 वैल्यू डाल रहे हैं, दैट इज़ ग्रेटर दैन 18,000। अगर हम ओके करेंगे तो ये हम फिर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर हम टैब प्रेस करेंगे फिर वही एरर आएगा। तो ये हम तब तक नहीं इसमें वैल्यू ऐड कर पाएंगे जब तक जो वैल्यू है वो 18,000 से कम ना हो। जैसे अगर हम 17,999 भी इंटर करेंगे तो इट इज़ वैलिड, बट अगर हम यहाँ पे 18,000 टाइप करने की कोशिश करें और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो विल गेट द एरर मैसेज, सो इट मस्ट बी लेस दैन 18,000। तो इस तरीके से हम कई सारे वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। जैसे मान लो किसी का एज कॉलम है, एज कॉलम पे हमने वैलिडेशन रूल ये लगा दिया कि अगर कोई मान लो एम्प्लॉय टेबल है तो उसमें एम्प्लॉय की एज 62 ईयर्स या 60 ईयर्स से कम होनी चाहिए, या किसी एम्प्लॉय की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब वैलिडेशन रूल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल वी इंटर 22,000 ऑल्दो we have to validate more than or equals to 3,000. In datasheet view, if you enter a wrong entry or violate the rule, a custom error message appears, जैसा आप देख चुके हैं। फिर है सेविंग एंड क्लोजिंग द टेबल। अब ये तो बहुत आसान है कि टेबल स्ट्रक्चर इज नाउ कंप्लीट। द नेक्स्ट स्टेप टू सेव द टेबल इन डेटाबेस, you should give a name to the table before saving it. Once you have saved the table, you can continue working in the table window or close the window. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको मैंने बताया था कि सेव बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव हो जाएगा ये वाला बटन। दूसरा क्या है कि द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, और उसमें आप टाइप करेंगे नेम, और ये सब हम शुरू में ही कर चुके हैं कि टाइप द नेम इन द टेबल बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन एज सेव द टेबल एंड टेबल नेम अपीयर्स इन द टाइटल बार एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द टेबल। अब इसमें आप कई तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है ये सेव करने का क्विक एक्सेस टूल बार में। दूसरा तरीका है फाइल टैब में जाइए और यहाँ से सेव ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तब भी सेव हो जाएगा। तीसरा तरीका है यहाँ राइट क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। और चौथा तरीका कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो भी आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सेव हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल। अब देखिए, the first step is to create a table and save it. The second step to add record in the table must be open so that the record can be added to the table. The table display in datasheet view. In datasheet view, the table is represented as a collection of rows and columns in called data sheet, जो अभी आपने देखा था। इसको करने के लिए डबल क्लिक ऑन द टेबल in the in this example, that means डांस क्लास डेटाबेस विंडो। उसके बाद हमारा डेटा शीट व्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप कर देंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हमने तो टाइप कर ही दिया है। अगर ये डिज़ाइन व्यू में है, आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, डेटा शीट व्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस कॉलम्स के विद रिस्पेक्ट आप वैल्यूज़ इनपुट करते जाएंगे और यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स ऐड होते जाएंगे।
जैसा कि मैंने एक और रो ऐड कर लिया। तो एडिंग रोज इज़ इजी, बस आपको टैब की प्रेस करते जाना है और जो नई वैल्यूज़ हैं आपको कॉलम्स में डालते जाना है, आपका रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टाइप द आईडी नंबर इन द फर्स्ट कॉलम, प्रेस टैब की, कंप्लीट द एंट्री फॉर द स्टूडेंट आईडी फील्ड, टाइप द फॉलोइंग एंट्रीज, प्रेसिंग द टैब की आफ्टर ईच एंट्री टू कंप्लीट द रिकॉर्ड। आफ्टर टाइपिंग द लास्ट एंट्री फीस, प्रेस द टैब की, टैब की प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड में आ जाएंगे। ऐड द रिमेनिंग रिकॉर्ड बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स you used to add the first record as in step 2 and to 4. When you finish entering data, click on the save button to save the changes. सेव करने के लिए सेव बटन प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। ऐसे सेव द टेबल एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द टेबल इन द नेविगेशन पेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइजेस। पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज नोन एज वैल्यू, ये वैल्यू होगा इसमें। अ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड, द कैरेक्टर लिमिट ऑफ मेमो डेटा टाइप इज 63999 अकॉर्डिंग टू योर बुक, बट इट शुड बी 65535, ये होगा। द डेटा टाइप दैट इज यूज टू डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव फील्ड इज मेमो, and the key that you press to move from upper pane to lower pane is F6। फिर है अ डेटाबेस, यहाँ पे होगा डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स कैन बी यूज टू होल्ड a specific value in a table. .accdb extension is used by default in MSSS 2010 files. There must be unique name for each field in the table. फिर a primary key is a key that differentiate the record in a file, and last the tab contains most of the properties you work with, तो ये होगा जनरल टैब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन DBMS, व्हाट इज़ द नीड ऑफ DBMS। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वाले पेज पे आना होगा, दैट मीन्स पेज नंबर 1। तो देखिए MSSS के बारे में दिया है, डेटाबेस के बारे में दिया है, और क्यों हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं वो भी यहाँ दिया है। तो अ डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड in a manner that allows us to retrieve data and use that data, ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, देन आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ MSSS। व्हाट इज़ MSSS, ये भी उसी पेज नंबर 1 पे सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट एसएसएस पावरफुल डेटाबेस, पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखिएगा .mdb एक्सटेंशन तक। ठीक है, पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिकॉर्ड फील्ड एंड वैल्यू। इट इज गिवन हियर, फील्ड, रिकॉर्ड एंड वैल्यू। See, in second topic we are having the answer with most popular database software package. A database consists of a collection of tables organized in rows and columns. A row in a table is called record and contains information about the given person. A column in a table is called field and contains a specific piece of information with a record. तो यहाँ से आप field का, row का और table का definition यहाँ पे आप लिख सकते हैं। Now again back to the questions. Next has define primary key. Why do we need a primary key? देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, a primary key is a key that differentiate the record in a file that it stores, यहाँ तक। ठीक है, and why we need primary key, तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनिए, we need primary key
in order to uniquely identify each record in the table by uh, removing the duplicacy of the data. ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में. देन आफ्टर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेम एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन MSSS. तो MSSS में जो डेटा टाइप्स हैं उसको आपको यहाँ पे नेम करना है और एक्सप्लेन करना है. दैट इज़ गिवन हियर. तो टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, लुकअप विजार्ड, अटैचमेंट, कैलकुलेशन. इसको पूरा आप लिखेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए कि एक्सप्लेन OLE ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक. तो उसमें आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना होगा, या एक्सप्लेन फॉर एनी 5 डेटा टाइप इन डिटेल. तो यू हैव टू राइट ऑल द डेटा टाइप इन योर कॉपी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ answer the following question is name and explain the different field properties in a database. So field properties in a database, if we want to see, it is given here. So these are the field properties. यहाँ पे आप देखोगे, इसको जूम करोगे तो आपको मिल जाएगा फील्ड साइज, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इनके नाम नोट कर लीजिएगा. मैंने इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया था, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं. देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में देखिए, सोम्या हैज़ मेड अ डेटाबेस table in MSSS containing the field like student name, class, roll number, etc. She has set the primary key for the field student name. She has done the right thing by setting the primary key for the field. Explain. तो इसका आंसर होगा no. She has done the mistake while choosing student name as a primary key because there can be 2 students with the same name. So she has to take रोल नंबर एज अ प्राइमरी की. अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया हुआ है. क्रिएट अ डेटाबेस नेम इंट्रोडक्शन एंड देन क्रिएट द टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू. ये टेबल आपको बनाना है. फील्ड नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्टैक्ट नंबर. इसमें आपको ऐड करना है सुटेबल डिस्क्रिप्शन. 20 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं और फिर इसको नाम से सेव करना है इस टेबल को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट इन योर लैपटॉप और कंप्यूटर. सेकेंड थिंग इज क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एज एड्रेस. नाउ क्रिएट अ टेबल दैट कंटेन द फॉलोइंग फील्ड. सेव द टेबल एज माई कॉन्टैक्ट. सेलेक्ट कॉन्टैक्ट ID एज प्राइमरी की. नाउ इंटर 10 रिकॉर्ड्स इन द टेबल. Add another field name email to the table and close the database and MSSS. ये भी आप देख चुके हो कैसे इसे करना है. तो you have to do both of these questions in your laptop or desktop and send the pics to my WhatsApp number. Thank you.